Ooh, 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 ooh. Good morning, everyone. Chalo, let us revise one more time. Mathematical logic. Agree? Okay. Type number one started. Mathematical logic. To examine which of the following sentences are statement in logic and state their truth value. What is a statement? A statement is a declarative sentence. Whatever we declare, anything declare is called statement, which is either true or false but not both. या true होगा या false होगा, एक साथ दोनों नहीं होगा. Yes. Example given to us. Every statement truth value must be either true or T, or false or F. Example again given. First three are true, next three are false. ये important था. Sentence which are imperative, command or request, exclamatory or interrogative, question tags are not a statement, नहीं माने जाएंगे. Statement नहीं है तो true false भी discuss करने की कोई जरूरत नहीं है. Yes, open sentence. An open sentence is a sentence in whose truth value can vary according to some condition which is not stated in the sentence. Door is open, he is running, she is an actress, he is an actress. All are open sentence. Yes. And last, very important, that number 3 notes. Note number 3, every mathematical entities are true statements. All are true. Yes. And we have solved first 10 questions also. 11th पे आके मैं रुक गया. क्यों रुका? बिकॉज मुझे आपको एक चीज देनी थी. कैपेचिनो ऑल दैट. वो चीज ये है नंबर सिस्टम. कॉपी एवरीवन. ये सबको अच्छी तरह आना चाहिए. नंबर सिस्टम. नंबर 1, नेचुरल नंबर. लिखो बच्चों, साथ में लिखो. Natural numbers.
n. 1 2 3 dot dot dot. Counting numbers are also called natural numbers. Start counting. 1 2 3 4 5 natural numbers. Number 2, whole numbers. That is W. Start from 0. 1 2 3 whole numbers. Number 3, integers. Some use I or some use Z also. Negative value, 0 and positive. Positive integers are natural number. Number 4, rational numbers. Is Q A upon B such that कोई कोई ऐसा 2 डॉट भी लिखता है, सेट थ्योरी है, रूल मेथड. A upon B such that B not equal to 0, A comma B belongs to integers. Examples देना जरूरी है. A number which terminate 1 upon 2 0.5, इसको बोलते टर्मिनेट. रुक गया. 3 upon 4 0.75 और रिकर 1 upon 3.3333, that is 3 bar. A number which recur, terminate or recur is called rational number. 5 is also rational number because 5 is 5 upon 1 is 5. हाँ या ना? These all are rational numbers, either recur or terminate. Number 5, irrational numbers. That is given as Q dash X such that X does not belongs to Q. That means the number neither recur nor terminate. Root 1.414, root 3 1.732, and pi is 22 upon 7 3.14 dot dot dot. These all are irrational number. Copied everyone? Any doubts, any point, anyone? Any doubts anyone in this? हो चुका है सर, खाली मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं.
एग्री? रिटर्न नो एवरीवन? रिटर्न ना? ओके, next is real number. Number 6 is a real number जो हम घड़ी घड़ी पढ़ते रहते हैं. Real numbers. Agree? That is a R. X such that X belongs to a number which is rational or irrational. Note, rational intersection irrational is a null set. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट जब दोनों मिल जाते हैं तो बनता है रियल नंबर. सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर that you have done in FYGC chapter number 3, complex number C. Yes, A plus BI such that A comma B belongs to R and I is equal to root of -1. So बच्चों ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर. यस, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, यस, natural number, whole number, integers, then rational numbers, natural number सबसे पहले कौन है? अंदर वाला नेचुरल नंबर, उसके ऊपर वाला सर्कल होल नंबर्स, ग्रीन वाला सर्कल इंटीजर्स, रेड वाला रैशनल. इरैशनल अलग बनेगा. यस, इरैशनल अलग से बनेगा. ये बन गया इरैशनल.
दैट इज क्यू डैश। और इससे भी बड़ा एक आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, सी का वैल्यू, यस दैट इज सी, यस और नो। तो व्हाट हैपेंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं हमें नया नाम देना पड़ रहा है। यस, जस्ट लाइक ये आपका घर है नेचुरल नंबर, बट ये घर इस विंग में है होल नंबर, बट ये होल विंग जो है ना वो इस बिल्डिंग के अंदर है ABCD, ये बिल्डिंग इस लोकेलिटी के अंदर है। एग्री और नॉट? सच दैट थिंग हैपन हियर आल्सो। सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेक फ्रॉम योर, all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers, all integers are rational number, all rational numbers are real number, all irrational numbers are irreal number, all real number are complex number. Yes, यहाँ क्या था, यहाँ 1 2 3, इसके पास 0 था, इसके पास -1 -2 -3, इसके पास 1 डिवाइड बाई 2 1/3 ये सब था, इसके पास √2 √3 पाई, इसके पास a plus bi, right? This also. So natural, what we can conclude, all natural numbers are whole number, all natural numbers are integers, all natural numbers are rational number, all natural numbers are irrational numbers, all natural numbers are complex number, है ना? If a person stay in Shantinagar, he also stay in Mia Road. If person stay in Shantinagar, he also stay in Thane district. If a person stay in Shantinagar, he also stay in Maharashtra. If person stay in Shantinagar, he also stay in India. If person stay in Shantinagar, he also stay in Southeast Asia, Asia, world, universe, फलाना ढिगड़ा सब चलता रहता है। एग्री और नॉट? मगर उल्टा बोलूंगा ऐसे कि भैया ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो भैया ये तो रॉन्ग है। If a person stay in India doesn't mean stay in Shantinagar, उल्टा रॉन्ग हो ना। All integers are whole number, wrong है सर। All whole numbers are integers, national number, wrong है सर। All complex numbers are real number, wrong है सर। ये सब wrong बोल रहे हो आप। अंदर से बाहर हो सकता है, बाहर से अंदर नहीं हो सकता। ये नोटेशन आगे भी यूज होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल दिख रहा नहीं मगर है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। Draw this diagram also please, all of you. अब ये समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 11 अब आपको समझ में आ जाएगा। That's why I given this, and ये बहुत यूजफुल है आगे भी। कि हमें मालूम ही नहीं रियल नंबर होता क्या है, जगह जगह पे आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c, a not equal to 0, a b c आर रियल नंबर। भाई क्या है रियल नंबर, भाई मालूम ही नहीं हमें। Simultaneous equation a1x + b1y + c, when a1 b1 and c1 रियल नंबर, मालूम ही नहीं क्या रियल नंबर है। तो ये होता है रियल नंबर, अ नंबर विच इज रैशनल। व्हाट इज रैशनल? रिकर और टर्मिनेट। और irrational, irrational neither recur nor terminate, is called real numbers. Understood? Yes, हो गया डायग्राम ड्रॉ करके? चलिए, now I can discuss question number 11 with you with the concept, clear concept, है ना? अब तो डाउट नहीं है ना?
क्वेश्चन नंबर 11, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आप बोलो ट्रू फॉल्स. एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टेटमेंट है, यस और नो? या ट्रू फॉल्स? Yes, it is a true statement. ट्रू तो नहीं है, फॉल्स है. क्यों? आप तो ट्रू बोल रहे थे. ट्रू आएगा, ट्रू. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अरे भाई फॉल्स आएगा ना, उल्टा हो गया ना. सिर्फ डायग्राम. या ट्रू इज करेक्ट. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है. क्या बोल रहा हूं मैं? वेट. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यस, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर. आपका फ्लैट आपकी विंग है पूरी. यस और नो? इज इट ट्रू? योर फ्लैट इज योर विंग. पूरा विंग आपका है. 7th फ्लोर, पूरा 7 माला आपका. ये पूरा हर फ्लैट पे, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट, 28 फ्लैट्स का ओनर हो आप. ऐसा होता है क्या? You are owner of only one of the flat of out of 28 flats. Agree or not? So every flat in the wing is your flat. ये सही बात है क्या गलत बात है? उल्टा आएगा. Every whole number is a natural number. Integers is a whole number. Rational number is a integers. Yes. Because whole number में जीरो एक्स्ट्रा आता है. Okay, true. 1 is a prime number. अच्छी बात है ये. Very good. Number 11 is very good question. 1 is a prime. One is prime. True or false? तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2 is prime and 2 is the only even prime. Remaining all prime numbers are odd. Yes, the 1 is prime is a statement but false. 1 is prime is a false statement. With the sunset day ends. Statement first, yes or no? 13th one statement है क्या नहीं है?
It a statement. With sunset the end, the day ends. Yes, it's a true statement. Answer statement and true. Next, 1 factorial is 0. 1 factorial 1 होता है, 0 factorial भी 1 होता है. FYJC, permutation combination statement, but it is a false statement. 1 factorial is 1, not 0. Factorial multiply. 2 factorial 2 into 1. 3 factorial 3 into 2 into 1. Statement and false. 3 plus 5 greater than 11. 3 plus 5 how much? 8. Is it 8 greater than 11? No. So answer statement and false. ये पाई है, पाई. This is the value of pi. Pi is a irrational number. अभी ऊपर ही गया है. Number 14. The number pi is a irrational number. Answer true. Statement and true. Number 14. Sorry. Number 16. Statement and true. Next. X square minus y square equal to x plus y, x minus y. For x, y belongs to real number. ये लिखना जरूरी है. Answer again statement and true. Number 17 also. Number 18. The number 2 is only even prime number. बोलो क्या बोलते हैं इसके बारे में? The number 2 is the only even prime number. Statement and true. 2 is only even prime. Remaining all primes are odd number. Two coplanar lines are either parallel or intersecting. First, what is the meaning of coplanar? Coplanar means lies on the same plane. अभी आप जो रूम में बैठे हो उसमें 6 डिफरेंट प्लेन है. फ्रंट ऑफ यू, बैक ऑफ यू, लेफ्ट राइट, सीलिंग एंड द फ्लोर. 6 डिफरेंट प्लेन. सो दोनों लाइन को एक ही प्लेन में ड्रॉ की है. बट ऑब्वियस एक ही प्लेन ड्रॉ किया, या तो वो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे. आंसर स्टेटमेंट एंड ट्रू. इसी स्टेटमेंट में इफ आई रिमूव द वर्ड कोप्लेनर, सेम क्वेश्चन, I remove this coplanar. Two lines are either parallel or intersecting. In that case, the statement become open statement. हाँ है ना, क्योंकि दो लाइन कहाँ ड्रॉ की मुझे मालूम नहीं है. तो ये क्या हो गया? ओपन सेंटेंस हो गया. सॉरी, ओपन सेंटेंस क्या होता है? नॉट अ स्टेटमेंट. बिकॉज ऑफ द वर्ड कोप्लेनर गिवन देयर, ये स्टेटमेंट है और साथ ही साथ ये ट्रू स्टेटमेंट है. इफ द वर्ड कोप्लेनर इज रिमूव, दिस इज रिमूव, निकाल दिया इसको. चल, टू लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, तो ये तो ओपन स्टेटमेंट हो गया, सॉरी ओपन सेंटेंस हो गया. व्हाई? बिकॉज दो लाइन कहां ड्रॉ की मुझे मालूम नहीं है. एक आपके घर पे, एक मेरे घर पे. हाउ टू डिस्कस? बिकॉज ऑफ द वर्ड कोप्लेनर इट बिकम स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट. अंडरस्टूड? कितना इंपॉर्टेंट है वर्ड कोप्लेनर यहाँ इस स्टेटमेंट में. The number of arrangement of 7 girls in a row of photograph is 7 factorial. Statement and true. Again, FYJC permutation. 7 जन को अरेंज करना है 7 factorial without any restriction. Then you solve together, not together. वो अलग बात है, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सिंपल क्वेश्चन है. The number of arrangement of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial is a true statement. Yes. Number 21, give me a compass box.
क्या है ये बताओ? नॉट अ स्टेटमेंट। यस, बिकॉज ये रिक्वेस्ट है, कमांड है, डिपेंड करता है टोन के ऊपर। गिव मी अ कंपास बॉक्स, डिफरेंट लॉजिक है वो, नॉट अ स्टेटमेंट। ब्रिंग द मोटर कार हियर, not a statement, nothing is declared there. It may rain today, yeah, it may rain today, not a statement, because ये open sentence है, संभावनाएं है। yes or no, nothing declared, it may rain today, it's an open sentence, not a statement. Next, if a plus b is less than 7 means a का जो वैल्यू है वो तो 0 से ज्यादा होगा और दोनों 7 के बीच में, जाहिर सी बात है a का वैल्यू 1 प्लस 2, 3 लेस देन 7। yes or no, a का वैल्यू इधर 2 तो ये 3, 2 प्लस 3 लेस देन 7। बट ऑब्वियस अगर a प्लस सम इज लेस देन 7 मतलब दोनों का वैल्यू 1 और 7 के बीच में ही आएगा। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड ट्रू। नंबर 24, स्टेटमेंट एंड ट्रू। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? आंसर। स्टेटमेंट एंड फॉल्स। नहीं, ये तो क्वेश्चन टैग है, नॉट अ स्टेटमेंट। ये डिस्कस किया मैंने। कॉपी दिस प्लीज, ये आगे आएंगे इसके लिए। ट्राइंगल सिस्टम according to the sides, if all sides are different it's called scalar triangle, if any two sides are equal it's called isosceles triangle, if all three sides are equal it's called equilateral triangle. According to angle point of view, acute angle, 90-degree, obtuse angle and all angles are equal is called equiangular. equilateral को equiangular भी बोलते हैं। equilateral, all three sides are equal. Yes, if all three sides are equal, each angle is 60-degree, that is equiangular. If all three angles are equal but obvious all three sides are equal, both are one and the same, this is side point of view and this is angle point of view. Yes, and quadrilateral system, first is trapezium, parallelogram, rhombus, rectangle and square. Copy this please, all of you. ये जो लिखा है ना ऊपर, नेचुरल नंबर समाया हुआ है होल नंबर के अंदर, है ना। होल नंबर किसके अंदर है? इंटीजर्स में। इंटीजर समाया हुआ है रैशनल में। रैशनल किसमें है? रियल में। रियल किसमें है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली इरैशनल रियल में है एंड रियल इज कॉम्प्लेक्स। all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers, all integers are rational, all rationals are real, all real are complex, irrational also real, irrational also complex. That's why function statement true आया था।
yes, return, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नई बात नहीं है इसमें, एग्री? पढ़े ना? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2, सच्चाई का टेबल, ट्रुथ टेबल। यस, उससे पहले लॉजिकल कनेक्टिव, इससे पहले वॉट एवर स्टेटमेंट आर डूइंग वो एक सिंगल स्टेटमेंट था, सिंगल स्टेटमेंट, single. The number of arrangement of 7 girl in a row for a photograph is 7 factorial. If there are two statements and we have to connect them, so we use what? Connective. Yes or no? The words or phrases which are combined two simple statement are called logical connective. Yes or no? For example, and, not, of, but, if, then, either, or, etc. are some connective which are commonly used. Yes or no? We have to know all statements are if then. If a triangle is a right angle triangle, then square of a hypotenuse is equal to sum of the square of two side. If then से दो स्टेटमेंट कंबाइन किया और वो ट्रू स्टेटमेंट अलग बात है. यस, हमें पढ़ने हैं ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें खाली 5 कनेक्टिव है. हाउ मेनी? 5 connectives there in your syllabus, only 5. If you learn that much, आधा काम आपका हो जाएगा. Okay, what is compound statement? A combination of simple statement formed by using connective is called compound statement. Yes, give the heading, type number 2. Write down all of you. Type number 2, compound statement. Write only logical connectives. Whatever is highlighted, write that fast. Finish all of you? Then make this table. The various connective have been listed in the following table. हमें यही 5 पढ़ना है. Connective not, उसका symbol just like similarity of a triangle, and it's called negation. क्या बोलते हैं? It's called negation. और channel V की तरह disjunction and conjunction, if then, implication. That means if the connective negation is used, this symbol not is used, we call negation statement, disjunction statement, conjunction statement, implication statement, and double implication statement.
This 5 we have to learn. Finish everyone? Written this 5 connectives. Written? ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, अबे कहाँ गई? हर एक का लॉजिकल ट्रुथ टेबल कैसे आएगा? वन बाय वन। सबसे पहले निगेशन। निगेशन मतलब नॉट। whatever we deny, anything deny is called not. Yes, in the place of not it is false that or it is not true we use that. It is not the case of that or it is or false that or negation मतलब ये बात सही नहीं है। एग्री और नॉट, जस्ट राइट दिस नंबर 1 निगेशन। ये मत लिखो, ये लिखो। द negation statement of P is written as this and read as negation of P or not P in the symbolic form. Now before this, wait a minute, let me come to one point. सुनो, if a coin is tossed, single coin is tossed, सिंगल कॉइन है, उसको टॉस करेंगे तो उसकी आउटकम क्या आएंगे बच्चों बताओ? 10 स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल, है ना? If 2 coins are tossed, outcomes HH, HT, TH, TT. Agree or not? Same to same concept. जिस तरह से when a single coin is tossed, possible outcome is a head or tail. Same to same. If there is a single statement, yes, if there is a single statement, उसके पॉसिबल आउटकम ट्रू या फॉल्स आया ना? तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है पी, स्मॉल पी, then the outcome is capital T and capital F. Agree? Yes. अगर क्वेश्चन में 2 आउटकम है, 2 स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट, सॉरी, स्मॉल p एंड स्मॉल q, तो आउटकम क्या आएंगे? टी टी, दोनों ट्रू।
पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला एफ, एफ टी एंड एफ एफ, जस्ट लाइक टू कॉइन्स। याद आया? फोर आउटकम, एच टी, टी एच, एच टी एंड एच एच, वैसा ही है। If three coins are tossed, what are the possible outcome? 8 थे ना? P Q R. Yes, I have three statements. 1, 2, and 3. When three coins are tossed, there are 8 possible outcome. याद है? Here also 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. कौन से डिस्कस कर लेते हैं भाई? राइट 4 times T here and 4 times false here. इधर पहले TF था एक स्टेटमेंट के लिए, दो के लिए 2 times T, 2 times F, TF, TF। 3 के लिए 4 बार T, 4 बार F। नाउ 2 times T, 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 2F, 2T, 2F, then TF, 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 TF। ये वाला T, ये वाला F नहीं चाहिए। Only they want capital T and capital F. We are dealing with only 2 alphabets. So अगर आपका wrong हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आंसर F था, आपने T लिखा, तो उसी के ऊपर ओवरराइट नहीं करना है। T था, आंसर F आना चाहिए। व्हाट टू डू? कैंसिल करना है, बाजू में F लिखना है। नहीं तो वो कुछ समय बाद ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको, ना T रहेगा ना F रहेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये होता है, इसीलिए बता रहा हूं। अंडरस्टूड? आवर आउटकम इज ओनली T and F. That should be written in capital letters, compulsory, just like filling a form, है ना? Use only capital letters because small letters सबके अपने अपने होते हैं। किसका T और कुछ होता है, किसका T और कुछ होता है, किसका F और कुछ होता है। Everyone is own cursive writing T and F, उनको वो नहीं चाहिए। Only capital letters। ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है। मिस्टेक होगी, इंसान है भाई, गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आंसर F आना चाहिए T, तो उसी के ऊपर कलाकारी नहीं दिखानी अपनी। ओके, उसको कैंसिल करना है छोटा सा, और बाजू में नया लिखने का, इन केस रॉन्ग हुआ तो। नहीं तो वो कुछ समय बाद ऐसा दिखेगा, ना वो T रहेगा ना वो F रहेगा, और चेक नहीं होगा फिर। अंडरस्टूड दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट? सेम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी, 1 coin 2 outcome, so 1 statement 2 outcome TF. If there are 2 coins 4 outcome, if there are 2 statements 4 outcome again, because TT, TF, FT and FF. How to remember? 2 times T, 2 times F and TF, TF. 3 coins 8 outcome, here also 3 statements, PQR क्वेश्चन में है तो 8 outcome आएंगे। कौन से रहेंगे वो? 4 बार T 4 बार F, 2 times T 2 times F एंड TF, TF अपने आप वो सब यूनिक बन जाएगा। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी दिस फास्ट, देन वी स्टार्ट दैट टेबल प्लीज। डन?
Yes, written everyone. Now write this. Negation and this after the negation. The negation of a statement written as negation of how to read and the paragraph through table of T. तो T का negation क्या आएगा? F. F का negation क्या आएगा? T. सही बात है ना? Give the adding negation and the symbol and just whatever highlighted, write that much only. उतना ही लिखो. It is false that and it is not true that also use in statement for negation. Written. Disjunction or disjunction. If P and Q are two simple statements connected by the word or, then the resulting compound statement is called P or Q. It's called the disjunction of P and Q, which can be written symbolic form. अब देखो और में क्या होता है? What is और? ये या वो, मतलब दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो मेरा काम बन जाएगा. इसीलिए देखो जब दोनों ट्रू आंसर आया तो आंसर क्या लिखा? टी. टी एफ तो भी आंसर टी आया बिकॉज और है. मैंने सॉल्व क्वाड्रेट, एक आंसर दो है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. तो दोनों में से एक भी सही हुआ तो आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस. सो इन और एनी वन इज ट्रू और बोथ आर ट्रू इज ट्रू. दोनों f रहा, दोनों बात सही नहीं तो ये f. शॉर्टकट क्या है इसका? अगर दोनों आजू बाजू में f आए तो वो f होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं. सिंपल भाषा में दो f और के साथ आजू बाजू में आए तो वो f होगा, चाहे ऐसे आओ चाहे वैसे आओ. ये सुनो, p और q और p दोनों का सेम ही आ रहा है. tt पकड़ो या ऐसे tt पकड़ो, tf या ft या tf, आंसर सेम है. ये आंसर लगे देखो, दिस आंसर इज डिफरेंट, बाकी सब सेम है बिकॉज और है. एंड में इसका अपोजिट होगा. एंड में क्या होगा? दोनों t आएंगे तो t होगा. दोनों बात से एंड ऐश्वर्या इज टॉल एंड ब्यूटीफुल. हाँ दोनों है ये. तो ये बात सही हुई. दोनों में से एक भी नहीं चलेगा. ऐश्वर्या इज टॉल एंड नॉट ब्यूटीफुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. एग्री और नॉट? तो उसके लिए दोनों ट्रू होना कंपलसरी है. फर्स्ट कॉपी दिस. अंडरस्टूड? इसमें क्या बोला मैंने? दोनों एफ आएंगे और कनेक्टिव आएगा तो रिजल्टिंग विल बी एफ, एल्स इट विल बी ट्रू बिकॉज और इज यूजिंग. Understood? That's why I've highlighted this one, F or F. And I'm giving reverse effect also. P or Q, Q or P. Copy disjunction, everything. टेबल भी और टेबल से पहले भी.
disjunction, disjunction. Any doubts, anyone? 5 ट्रूथ टेबल है बिकॉज वी आर डूइंग 5 कनेक्टिव. Written? Disjunction, any doubt? Finish all of you? Disjunction, conjunction. जो मैंने कहा था वही है, देख लो. कंजंक्शन में एंड मतलब दोनों बातें साथ में होना जरूरी है. मतलब दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है. दिख रहा है ना? कंजंक्शन में if P and Q are any two statement connected by the word and, then the resulting compound statement P and Q is called conjunction of P and Q, which is written in symbolic form P and Q, and the truth table also given to you. There are two statements P and Q, that's why 4 outcome. Negation वाले एक ही था P, तो that's why 2 outcome थे यहाँ इनके लिए. but obvious and or if then if and only if के लिए मुझे कम से कम 2 statements तो चाहिए ना. That's why 4 outcome is coming. Understood? और दोनों ट्रू हुआ तो ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है. दोनों बात सही है तो ही वो सही बात है. एक भी बात गलत होती है मतलब वो बात गलत है. एंड मतलब दोनों साथ में, और मतलब कोई भी एक चलेगा. अंडरस्टूड? लास्ट एंड दिस दोनों का रिवर्स सेम आ रहा है ना. लास्ट 2 कॉलम कमिंग सेम. पी एंड क्यू, क्यू एंड पी, पी और क्यू, क्यू और पी सेम था. सेम ही है ना? रिटर्न थर्ड वन. Any doubts in third one? Anyone? Conjunction, disjunction, conjunction. Disjunction, if 2F is there, answer is F. Else answer is T. Conjunction and if 2T is there, आजू बाजू में, answer is T. Else answer is F. That I will shortlisted. आपको पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में पूरा टेबल हो जाता है. That I'll give you shortcuts. But initially हम लोग को पूरा टेबल देना पड़ता है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे इफेक्ट्स आते हैं. 100% वन क्वेश्चन विद देयर फ्रॉम ट्रूथ टेबल आता ही है. कंपलसरी ट्रूथ टेबल क्वेश्चन रहेगा रहेगा रहेगा.
Done everyone? Conjunction? Little bit concentration required for the fourth one. Fourth one is implication. If, then. Condition statement. If, then. If the simple statement P and Q are connected by a group of words, if, then, the resulting compound statement, if P, then Q, is called conditional statement or implication. Yes. How to read? P implies Q. All the statements done in school days are if then. Yes. इसमें जरा गौर करना, ये सेम आपको नहीं दिखेंगे, लास्ट के दो कॉलम सेम नहीं दिखे, तो क्या इसका लॉजिक है देख लो. इफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल TF होने के बावजूद स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज नॉट इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, मतलब ये बात तो गलत हो गई है, ऐसा तो होना चाहिए था. तो TF ये ना P इंप्लाइज क्या लिखा ऊपर, P इंप्लाइज Q. दैट मीन्स पहले P का कॉलम देखो, बाद में Q का कॉलम देखो. मतलब पहले P में T आया और Q में F आया तो वो होगा F, बाकी सारे T. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, Q इंप्लाइज P, तो ये TF नहीं है भाई, उल्टा ना, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये TF नहीं है. TF आपको यहाँ दिखेगा, ये TF दिखा आपको, इसका आंसर F लिखा हुआ है, बाकी सारे T है. दैट मीन्स पहले T आना चाहिए, बाद में F आना चाहिए. P इंप्लाइज Q, तो P में T और Q में F, उसका आंसर F. अब यहाँ ऊपर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ Q और पहले, मतलब पहले Q देखना है, बाद में P देखना है. तो ये TF नहीं है, ये भी TF नहीं है. TF यहाँ दिखाई दिया थर्ड में, उसका आंसर F है, बाकी सारे T है. अंडरस्टूड? समझा दोनों अलग क्यों है, हाँ या ना? वाई दिस टू आर डिफरेंट? इससे पहले तो दोनों में सेम आ रहे थे, अब अलग क्यों आ रहे? बिकॉज ये बोलो TF, T इंप्लाइज F आया तो वो F. P पहला, ये P का T होना चाहिए और Q का F होना चाहिए. अब क्या लिखा हुआ QP, तो Q में T आना चाहिए और P में F आना चाहिए, तो वो F होगा, बाकी सारे T. यस. If you score 90 plus in your HSC board examination, yes, then your parents will send abroad for a holiday. वाह वाह, मजा आ गया सर, क्या बात बोले हैं. yes, but आगे नेपाल, ढाका, मालदीव्स, ऐसा भूटान, ये सब जगह. okay, not like Switzerland, all that. so you score good marks, true, and you are going abroad for holiday, true. तो बात सही है भाई, ट्रू 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 होगा. बट आपने स्कोर किया और आपका चीटिंग हो गई, आपको नहीं भेज रहे वो लोग, तो ये बात गलत है. एग्री? बिना स्कोर करे भी जा रहे हो, बल्ले बल्ले, वेरी गुड सर. ना स्कोर किया अपन तो ये वाले सर, ना स्कोर किया ना घूमने जा रहे कहीं, लास्ट कैटेगरी. एग्री और नॉट? दैट्स व्हाई TF इज F. PQ ऊपर जो लिखा है ना P इंप्लाइज Q, उसको फॉलो करना है, वहां से TF. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है QP, तो पहले TF यहाँ. इज इट ये TF? नो सर. ये TF? नो सर. ये TF? यस सर. तो इसका आंसर F है, बाकी सारे T है. कॉपी. इसमें खाली थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब में सेम होता है. राइट एवरीथिंग. अंडरस्टूड ना?
Written for table. Any doubts in for table? TF is F. T implies F is F. Better. T implies F is F. T implies F is F. बाकी सारे T. Agree? पहले T आना चाहिए, बाद में F आना चाहिए. तो P implies Q में सेकंड में आता है और Q implies P में थर्ड में आता है TF. इसके लिए वो F है, बाकी सारे T है. Understood? डबल इम्प्लीकेशन, दोनों बात सही होना चाहिए. That means if both are true, it is true, and both are false, it is true. Yes or no? Neither we have score and we are going abroad. सही बात है. ना ही हमने स्कोर किया है, ना ही हम अब्रॉड जा रहे, ये भी बात सही है. दोनों एक दूसरे पे इक्वली डिपेंडेंट. I will go abroad for a holiday if and only if my son or my daughter will score 90 plus. दोनों बात ट्रू है, सही बात है. दोनों बात फॉल्स है, ये भी सही बात है. मतलब एफ में क्या था, एंड में क्या था, दोनों टी तो टी, मगर यहां दोनों एफ में भी टी आ रहा है. देख लो लास्ट टू कॉलम सेम ही दिखे आपको. यस, इफ एंड ओनली इफ, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. दोनों बातें एक साथ होगी. इफ एंड ओनली, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा. इफ एंड ओनली इफ. डबल इम्प्लीकेशन, कंडीशनल इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन. शॉर्ट फॉर्म IFF भी आता है कभी कभी एग्जाम में. IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ का शॉर्ट फॉर्म है वो IFF. Done everyone? Finish?
अब ये सबको यूज करना है कहाँ, वो देख लेते हैं अभी हम लोग। फिनिश एवरीवन? नो स्टेटमेंट पैटर्न, जान दो इसको, पढ़ लेते एक बार। स्टेटमेंट पैटर्न और फॉर्म्स एंड दैट ट्रुथ टेबल। A statement pattern form or a statement pattern is a symbolic representation of a compound statement using statement letters and one or more connectives. Statement patterns are denoted by capital letters. PQ are the patterns. That is a statement pattern. Also statement pattern. Example is a statement, negation, all that. Shortcuts पे ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शॉर्टकट से आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा ऑल द ट्रुथ टेबल। और में क्या था, और में एफ और एफ आया, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, 3 बार इक्वल टू साइन है। एफ और एफ इज इक्वल टू एफ रिमेनिंग ऑल आर टी। देखो ऊपर दिखाता हूं मैं क्या लिखा है, एफ और एफ। देखो और में नॉट का तो जरूरत नहीं है, एफ और एफ, 2 बार एफ आया तो आंसर क्या है एफ। रिमेनिंग मतलब कुछ भी चलेगा, 2 टी टी एफ ऐसे वैसे। रिमेनिंग मतलब ये वही नीचे इसका इसी, ये टेबल का शॉर्ट फॉर्म में दिया है। एफ और एफ इज एफ रिमेनिंग ऑल आर टी। एंड का शॉर्टकट दिया है टी एन टी टी रिमेनिंग ऑल आर एफ, मतलब नंबर टेबल नंबर 3 का शॉर्टकट दिया है मैंने। टेबल नंबर 3 में क्या था, 2 अगर टी आया आजू बाजू में तो वो टी है, बाकी कुछ भी आन दो, टी एफ आन दो, एफ टी आन दो, एफ एफ आन दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एंड आया है तो उसका आंसर एफ ही आएगा। इतना टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, वो लाइन में पूरा टेबल आ गया। यस। नेक्स्ट, टीएफ होना जरूरी है। टीएफ हुआ तो टी, एल्स टीएफ आंसर इज एफ, एल्स आंसर इज टी। ये रहा नंबर 4 टेबल का शॉर्टकट। देखो 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 देखो, टीएफ, जो टीएफ आया है वो एफ आया है, टीएफ उल्टा, टीएफ आया है वो एफ आया है, बाकी सारे टी आया है। लास्ट वन, 2 टी हो तो टी है, या 2 एफ हो तो टी है। लास्ट शॉर्टकट, गिव द हेडिंग लाइक दिस ओनली एंड राइट शॉर्टकट्स, ऐसा ही लिखना। लिखो शॉर्टकट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे होता है ना बोर्ड मास, इन सॉल्विंग कैलकुलेशन ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इन अलजेब्रा वी हैव बोर्ड मास, नो। सो इसका भी बोर्ड मास है। इन अ स्टेटमेंट पैटर्न व्हेन ब्रैकेट आर नॉट गिवन वी आर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस देम with the purpose we decide the priority of the connective in the following order. पहले and solve करो, फिर and, negation and और implication double equation. Write everything, then I'll solve one question for you, then you will understand मैं क्या कर रहा हूँ। जब से शॉर्टकट को तो भूलना ही मत। निगेशन का शॉर्टकट की जरूरत नहीं है ना, टी बिकम एफ, एफ बिकम टी, वो तो निगेशन में ऐसे ही होता है, अपोजिट। Finish all of you?
Return shortcuts, remaining value, and the statement and statement pattern, all that. First negation and all that, and or implication and double implication. Let us use all these weapons to destroy the next question. Exercise 1.6. Yes. Prepare truth table of. I'll solve this question. सेपरेट दिखाऊंगा मैं आपको क्या हो रहा है. प्रिपेयर ट्रुथ टेबल ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. क्या स्टेटमेंट पैटर्न है? एक्सरसाइज 1.6 निकालना डायरेक्ट, इन बिटवीन आफ्टरवर्ड्स करेंगे. ट्रुथ टेबल पेज नंबर 116, sorry, page number 16. Prepare the truth table of following statement pattern. May I start solving the first question for you? Yes. मैं वहां सॉल्व करूंगा तो आप ध्यान नहीं दोगे. Pay attention. Page 16, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 1. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. P implies negation P or Q. How many distinct alphabet used? Just tell me. A, B, एक या दो या तीन या चार, कितने यूज हुए? How many distinct alphabet यूज? रिपीटेशन नहीं बोला मैंने. P यूज हुआ है और Q यूज हुआ है, मतलब दो अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है. P Q. When in the question two alphabet, आउटकम 4 आएंगे. अगर क्वेश्चन में R भी रहेगा, as you can see क्वेश्चन नंबर 3 and 4 दिख रहा है. 3 और 4, 3 और 4 में P भी है, Q भी है, R भी है. दिखा? 3 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, अलग अलग टाइप से. कनेक्टिव है, अलग बात है, वो देख लेंगे. इसका मतलब इसमें कितने आएंगे? इसमें 8 वाले आएंगे. समझा? क्वेश्चन से. हर आंसर मैं आपको क्वेश्चन से ही दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, आंसर थोड़ी आएगा. यस. तो सबसे पहले हम बनाएंगे P और Q. सबसे पहले रो कंप्लीट करने का. ओके. उसके बाद क्वेश्चन देखो. ये P तैयार हो गया, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, आया ना? ब्रैकेट में क्या है? निगेशन ऑफ Q प्लस P और P. सॉरी, हाउ टू सॉल्व दिस? पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले निगेशन सॉल्व करेंगे. यस. उसके बाद Q तो मेरे पास है, निगेशन Q और P. ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया. उन दोनों के बीच में कौन है? एंड. लास्ट कॉलम हमेशा क्वेश्चन आएगा. एक बार फिर सुन लो, ये मेन काम है. बाकी तो TF खेलने का अपने को, बाकी तो अपने को TF खेलने का है. सबसे पहले क्वेश्चन में कितने अल्फाबेट्स है? 2 अल्फाबेट्स है सर. तो पहले लिखो PQ. फर्स्ट वैल्यू PQ सर रेडी है सर. नेक्स्ट ब्रैकेट दिया है, इसको तैयार करना है, इसको तैयार करना है. इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो पहले क्या सॉल्व होगा सर? पहले सॉल्व होगा निगेशन. निगेशन PQ मेरे पास है सर, दोनों रेडी है मेरे पास सर. उनके बीच में कौन है? एंड. सेकेंड भी हो गया. फर्स्ट रेडी, सेकेंड रेडी. एट द एंड P implies negation P और Q. एक बात सुन लो. What is the answer of -2 plus 3? Can you tell me? Give me the answer please. -2 plus 3 का आंसर क्या है बच्चों? Very good. +1. Very good. And what is the answer of minus of 2 plus 3? सेकेंड का आंसर क्या है बच्चों? बताओ बताओ बताओ. सेकेंड का आंसर -12 है, 2 plus 3 करना है.
इतना टाइम, एक भी आंसर नहीं आया। यस, -5। दोनों के आंसर सेम है क्या? इज इट बोथ आंसर सेम? यस और नो? नो। फिर सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ, निगेशन ऑफ पी और क्यू अलग चीज है, निगेशन ब्रैकेट पी और क्यू आया तो वो अलग है। हाँ या ना? समझा? सेम क्वेश्चन होता, P इंप्लाइज निगेशन बाहर P और Q, तो मैं कैसे सॉल्व करता? पहले मैं P लिखता फिर Q लिखता। अब इसका पहले मैं ये फाइंड करूंगा, उसके बाद उसको निगेशन करूंगा। आगे आने वाला ये पॉइंट, दोनों में फर्क है क्या नहीं है? यस और नो? यस। दैट्स व्हाई आई गिव एग्जांपल, नंबर से तो आपको समझ में आया। अंडरस्टूड हाउ टू मेक फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो। अब आगे इजी है, आगे अपने को टीएफ खेलने का है। यस, वन 2 3 एंड 4। बराबर सुनना, इसमें टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। पढ़ो क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा है ऊपर, पढ़ो, बोलो क्या लिखा है इधर, आंसर दो मुझे। निगेशन पी, पी का निगेशन मतलब ये जो टी है ये हो जाएगा एफ, ये जो टी है हो जाएगा एफ, ये एफ हो जाएगा टी, ये एफ हो जाएगा टी। समझा? अंडरस्टूड? अब क्या लिखा है, निगेशन पी मतलब ये कॉलम, और क्यू मतलब ये कॉलम, और इन दोनों में और सर्च करना है। और का शॉर्टकट क्या है बच्चों? और का शॉर्टकट ये है सर, दोनों में एफ सर्च करने का। दोनों में जहां एफ मिला ना सर, उसका आंसर एफ होता है, बाकी सारे टी होते हैं। देखो मैं कलर यूज कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। दो एफ इनमें माइनिगेशन ऑफ क्यू ये और क्यू ये दो कॉलम में और है, और मतलब दो एफ सर्च करने। दो एफ है क्या? नहीं। दो एफ है क्या? हाँ लिख दे एफ। दो एफ है क्या? नहीं नहीं, बाकी को टिकना। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप भी। अब क्या लिखा है पढ़ो, P मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या कनेक्टिव है? इंप्लाइज। अब मैं सर्च करूंगा TF, TF फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम में TF है क्या? नहीं। TF है? हाँ है सर, तो TF का आंसर F होता है। TF है क्या? नहीं। TF है क्या? नहीं, बाकी सारे T। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको बिल्कुल उसी तरीके और सलीके से सॉल्व करना है, नहीं तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे, कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें कुछ समझ में नहीं आएगा। सब टीएफ टीएफ दिखेगा, फिर दो ही अल्फाबेट है भाई, टीएफ, और है ही नहीं इसके अंदर कुछ। कलर मतलब चेंज हो रहा है, ये यहां हमने शॉर्टकट यूज किया है ऊपर से पीछे वाले देखने का। अगेन सबसे पहले क्या लिखा था, निगेशन ऑफ पी, तो पी का निगेशन मैंने सबको चेंज किया क्योंकि सब चेंज हो रहे ना। फिर निगेशन पी और क्यू मतलब इन दोनों में एफ सर्च करना। एफ क्यू सर्च करना बिकॉज और कनेक्टिव है। दो एफ नहीं है सर, हाँ है, उसको एफ लिख देने का। नहीं है, नहीं है, बाकी सारे टी। पी मतलब फर्स्ट कॉलम, इंप्लाइज फोर्थ कॉलम, मतलब यहां से टी यहां से एफ, ये टी ये एफ नहीं है, ये टी एफ ये है तो एफ लिखा, ये टी ये एफ, ये एफ टी है, टी एफ नहीं है बेटा। ऊपर वाला देखो, ऊपर क्या लिखा है, इस पे ध्यान देना इंप्लाइज में आप, टी यहां आना चाहिए एफ यहां आना चाहिए, टी एफ नहीं है, बाकी सारे टी। अंडरस्टूड? let me solve question number 2 also, 3 4 you can solve.
क्वेश्चन नंबर 2 इज negation P or Q and negation P or negation Q. How many alphabets, dear student? बताओ, 1 2 3 4 कितने डिस्टिंग अल्फाबेट्स? पी क्यू है ना, मतलब 2 अल्फाबेट. यस, वेरी गुड. तो स्टार्टिंग में क्या आएगा बच्चों? स्टार्टिंग में आएगा पी क्यू. दोनों में निगेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले निगेशन पी और निगेशन क्यू बना लेंगे. यस और नो? दोनों में लगता है ना, इसके लिए इसको पहले बना दिया. ये ब्रैकेट क्या है? निगेशन पी है मेरे पास, क्यू है, तो क्या आएगा? निगेशन पी और क्यू. नेक्स्ट निगेशन पी मेरे पास है और निगेशन क्यू भी है. एंड में क्वेश्चन निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू. एग्री? अब टीएफ का खेल खेलना है हमें. फर्स्ट क्या आएगा इधर? टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. निगेशन चेंज पी चेंज एफ एफ टी टी. क्यू चेंज टी एफ एफ टी एफ टी. समझा यहां तक? ऊपर क्या लिखा हुआ है? निगेशन पी मतलब सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम सॉरी, और क्यू सेकेंड कॉलम. व्हाट इज द कनेक्टिव? और मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम में 2 एफ सर्च करने का. 2 एफ है क्या? नहीं. 2 एफ दिखा तो वो एफ. 2 एफ है नहीं, 2 एफ है नहीं, बाकी सारे टी. फिर से और कनेक्टिव है किसमें? निगेशन पी थर्ड कॉलम, निगेशन क्यू फोर्थ कॉलम में और लिखने का है. 2 एफ है क्या? फर्स्ट वैल्यू इज 2 एफ, दैट इज एफ. 2 एफ नो नो नो. आंसर इज टी. लास्ट दिस कॉलम एंड दिस कॉलम. कनेक्टिव इज एंड. एंड में क्या करते हैं बच्चों? एंड में 2 टी सर्च करते हैं. नहीं नहीं, यस यस. तो लास्ट में 2 टी है, तो आंसर टी टी, बाकी सारे एफ. अंडरस्टूड? आई होप सो यू कैन सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ. उसमें 8 वाले आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाली काम थोड़ा बढ़ जाता है. बाकी है पी क्यू आर 4 बार टी 4 बार एफ, बाद में टी 2 बार टी 2 बार एफ और टी एफ टी एफ. रेस्ट आई होप सो यू कैन सॉल्व. इम्प्लाइज का ध्यान रखना. अंडरस्टूड? नाउ यू कैन लीव, दोज आर फिनिश. Whatever changing I am using color, कि समझ में क्या हो रहा है, क्या है उसके अंदर. ये तो पूरा ब्लैक कर दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा. और 2 ही अल्फाबेट है, टी एफ टी एफ. कैपिटल लेटर्स, ओनली कैपिटल लेटर्स रिक्वायर्ड. रिटर्न नो?